Hello students, today we are going to see English lesson number 1.5 and the name of the lesson is a kabaddi match. Students, you love to play sports, isn't it? आपको sports period बहुत अच्छा लगता है, sports खेलना भी अच्छा लगता है. So now this lesson, I think it will be very interesting for you. So without wasting time, let us start the lesson. The school sports meet was scheduled next month. So at the very beginning we come to know that a school sports day was scheduled in the next month. The practice matches had already begun. So whenever any sports school sport is scheduled, we people start the practicing. So here also the practice matches had started. 9B were the favorite as they had strong players in their team. So for your convenience, I have already drawn here the playground of this kabaddi match. Here are the two teams of the class. 9A is here and 9B is here. So these are the two teams of this kabaddi match. So see here, 9B were the favorites as they had strong players in their team. So in 9B, whoever were the players in this team, they all were favorites of all. सबके ये फेवरेट थे. क्यों फेवरेट थे? क्योंकि ये सबके सब प्लेयर्स बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे. For that, this team was the favorite team of entire school. The kabaddi trials were on, and in this manner, the practice matches were started, and now the kabaddi trial was started. This year, there were 3 new students in class 9A. And this year, what new thing was there? That there were 3 new students in 9th A class. 9th A का जो क्लास था, 9th A की जो टीम थी, यहाँ पर 3 new students आए थे. And these 3 new students were just outstanding. Outstanding मतलब बहुत ही अच्छे स्किल थे उनमें. कबड्डी खेलने के बहुत ही अच्छे स्किल्स थे. So these 3 new students were added this year in 9th A class. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. 9th A's hopes soared. तो अगर हमारी टीम में कोई भी टीम हो, if in our team there are good players, outstanding players, then obviously what happens? हमारे जो ड्रीम होते हैं, जो होप्स होते हैं, वो हाई हो जाते हैं. Soared means they were high. Their hopes were high. When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. So in this way, the match started. And as soon as the match started, all the audience, what they started doing? They started boosting the morale of both the team. जैसे ही मैच स्टार्ट होती है, आप लोग देखते होंगे मैचेस, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस क्लैप करती है. क्यों क्लैप करती है? इन ऑर्डर टू बूस्ट द मॉरल ऑफ द प्लेयर्स. प्लेयर्स का जो मॉरल होता है, तो उनका मॉरल क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्लैप किया जाता है. 9th A won the toss and sent their raider Govind. So as soon as the match started, टॉस वॉज डन. टॉस खेला जाता है सबसे पहले कि कौन सी टीम सबसे पहले स्टार्ट करेगी खेलना, तो वो देखने के लिए टॉस किया जाता है. सो हियर आल्सो टॉस वॉज डन एंड 9th A टीम वन द टॉस. तो टॉस किसकी साइड से आया? 9th A की टीम की ओर से. सो 9th A won the toss and sent their raider Govind. सो 9th A टीम ने टॉस वन किया एंड उन्होंने सबसे पहले कौन से प्लेयर को भेजा खेलने के लिए? गोविंद. देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, सबसे फर्स्ट प्लेयर कौन गया? गोविंद. He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suresh from 9th B. और वो इतना फास्ट था खेलने में. He was so swift and so fast that before this before the opponents realize it, opponents जो है उन्होंने उसको realize करने के before उसने क्या कर लिया? See here, Suresh from 9th B. 1 minute. He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suresh from 9th B.
तो इसने जैसे ही खेलना स्टार्ट किया, गोविंद जैसे ही 9th बी की टीम में गया, तो उसने क्या कर लिया, सुरेश को टच कर लिया एंड वॉज ऑलरेडी हेडिंग होम, और टच करके तुरंत ही वो अपने अपनी टीम में आ गए। आपको ये तो पता है ना, कबड्डी में क्या होता है, वन ब्रीथ में जो होता है, जो कोई प्लेयर दूसरी टीम में जाता है वो वन ब्रीथ में क्या करता है, जितना हो सके उतने प्लेयर्स को, अपोनेंट्स प्लेयर्स को क्या करता है, टच करता है और वापस अपने अपने टीम में आने की कोशिश करता है वन ब्रीथ में। हाँ, व्हाइल डूइंग सो ही कंटिन्यूअसली सेज कबड्डी 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 बोलता रहता है वो वन ब्रीथ में। सी, तो यहाँ पर क्या हो गया, गोविंद ने सुरेश को टच कर लिया एंड ही इमीडिएटली रिटर्न इन हिज टीम। अ पॉइंट वॉज स्कोर्ड, और इस तरह से एक पॉइंट किसको मिल गया, 9th बी को, 9th ए को एक पॉइंट मिल गया। रवि फ्रॉम 9th बी वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब देखो 9th बी की ओर चलते हैं, तो ये जो रवि था, he was a very strong player from 9th B. He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs, twisted like scissors, that releasing oneself from his grip was next to impossible. और वो अपने खेल में बहुत ही क्या था, बहुत ही माहिर था, उसे कबड्डी खेलना बहुत अच्छे से पता था, उसको कबड्डी के डिफरेंट स्किल्स आते थे। दोनों लेग्स के बिटवीन जो है, तो अपोनेंट्स का सर जो है वो क्या कर लेता था, ट्विस्ट कर लेता था, और इस तरह से बहुत ही परफेक्ट वो खेला करता था कबड्डी। All the players were literally afraid of him, and because of this skills of Ravi, रवि के इस स्किल की वजह से जो है, तो बाकी के सब प्लेयर्स उससे बहुत ही डरते थे। This ace player had won many matches for 9th B, and already this Ravi, this skillful player, had won many different matches for 9th B टीम। इसने बहुत सारे मैचेस 9th B की टीम के लिए ऑलरेडी जीते हुए थे। With the support of मोहन and विनोद, 9th B were unbeatable। और रवि के साथ में जो मोहन एंड अजिंक्य है, तो इनके साथ में, रवि के साथ में मोहन एंड विनोद, I forgot to write here विनोद। So, see, with the support of मोहन and विनोद, 9th B were unbeatable। तो मोहन एंड विनोद के साथ में ये जो टीम है, ये एकदम ही क्या थी, अनबीटेबल थी। मतलब इन दोनों के साथ में रवि, विनोद एंड मोहन, ये अगर प्लेयर जिस टीम में हो, तो इस टीम को हराना मतलब the task was just impossible। इम्पॉसिबल टास्क ये सबके लिए हुआ करता था। मंगेश फ्रॉम 9th A was also strong। अब देखो किसकी बारी आई, मंगेश फ्रॉम 9th A, he was also equally strong। He was a good match for रवि, और ये जो है तो रवि के लिए परफेक्ट मैच था। रवि was relaxed as he had never dreamed of any strong opposition from any team। और जो रवि है, तो रवि को पता था, रवि को ऐसा लगता था कि मेरे जैसा खेलने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, मेरे जितना स्किलफुल प्लेयर कबड्डी में कोई भी नहीं है, इसलिए वो एकदम रिलैक्स था, इसलिए रवि एकदम रिलैक्स था। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9th A would lose Mangesh। और जब मंगेश, अब फर्स्ट राउंड में कौन गया था, गोविंद, अभी सेकंड राउंड में कौन गया, मंगेश। जब मंगेश यहाँ पर खेलने के लिए गया इन दिस टीम, एट दैट टाइम रवि जो है, तो रवि ने इसको क्या कर दिया, सी व्हाट इज गिवन हियर, व्हेन मंगेश वाज रेसल्ड डाउन बाय रवि, रवि ने मंगेश को नीचे गिरा दिया। और आपको पता ही है रवि कैसा था, एकदम स्किलफुल प्लेयर था। तो सब ऑडियंस को ऐसा लगा, एवरीवन थॉट दैट नाउ दिस 9th A टीम वुड लूज मंगेश। मंगेश जो प्लेयर है, अभी मंगेश को ये टीम क्या कर देगी, हरा देगी, ऐसा सबको लग रहा था। Everyone in the spectator thought that 9th A would lose Mangesh, but Mangesh proved his mettle।
लेकिन मंगेश जो है, मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल, मंगेश ने अपना लोहा मनवा लिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, he was on the ground with the anti-raiders catching hold of his vest and legs। वो नीचे गिरा हुआ था, मंगेश यहाँ पर खेलने के लिए गया था और रवि ने उसको पछाड़ दिया था नीचे, और बाकी के जो प्लेयर्स है, बाकी के जो 3 प्लेयर्स है, और ये जो रवि के साथ में मोहन, अजिंक्य, ये सब है, तो इन्होंने मंगेश को क्या कर लिया था, नीचे दबोच दिया था। स्लोली ही इंच्ड टुवर्ड्स हिज कोर्ट, लेकिन इतने डिफिकल्ट कंडीशन में भी मंगेश ने क्या कर लिया, वो अपने इस बाउंड्री की ओर जा रहा था। स्लोली स्लोली वो यहाँ पर जा रहा था। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, he was on the ground with the anti-raiders catching hold of his vest and legs. Slowly he inched towards his court. All the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back. मंगेश अपने अपने ये बाउंड्री की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने इसे दबोच कर रखा था नीचे, बट मंगेश धीरे धीरे इधर सरकता ही जा रहा था। एंड दिस पीपल दे वर ट्राइंग टू पुल हिम बैक विथ फुल फोर्स, बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन। लेकिन कहा जाता है ना, अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी इच्छा शक्ति हो, तो इच्छा शक्ति के बलबूते पर, डिटर्मिनेशन पर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी काम करना है, वो हम पूरा कर सकते हैं। सो इन द सेम मैनर मंगेश हैड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। फॉर दैट व्हाट ही डिड, he continuously moved to this boundary and finally with determination he touched this boundary। और ये जो सब लोग थे जिन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ था, होल्ड करके रखा था, तो जैसे कि मंगेश ने इस बाउंड्री को टच कर लिया, ये सब लोग क्या हो गए, डिफेक्ट आउट। मंगेश सक्सेसफुली टच्ड द मिड लाइन, देयर वर cheers in the air। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out। ये 3 लोग जो है, रवि, मंगेश एंड अजिंक्य, इन 3 लोगों ने इसको पकड़ के रखा था, और जैसे ही मंगेश ने इस बाउंड्री को टच किया, व्हाट हैपेंड, these 3 players were out and team A scored how many points now, 3। 1 पहले ही किया हुआ था, अब इसमें कितने ऐड हो गए, 3। See now next page। Now 9th B began to play cautiously। Now because of all this situation, what happened, 9th B team was so scared। डर लग रहा था उनको कि कहीं हम हार में जाए, क्योंकि 9th A जो है, 9th A का परफॉर्मेंस बहुत ही गुड था। For that this team was now scared and they started playing cautiously। Cautiously means carefully। Mihir, one of their raider, even managed to tag Sohan in 9th A। अब मिहिर की बारी आई, इसकी बारी आई मिहिर। So see here, Mihir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in 9th A। Nothing much happened in the next few raids। लेकिन कुछ खास नहीं हुआ इस बार। मिहिर जो है, मिहिर का टर्न आया, मिहिर इस टीम में गया अभी खेलने के लिए, सोहन के साथ में उसने खेला है, बट नथिंग मोर हैपेंड, कुछ ज़्यादा वहाँ पर हुआ नहीं। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड। ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रेटेजीज एंड दे वर्कड फाइन। अब किसकी बारी आई, इसकी होने के बाद में अभी विवेक की बारी है, फ्रॉम 9th A। उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज थी। The remaining 3 players from 9th B tracked Vivek। अब 9th B जो है, जब विवेक यहाँ पर इस टीम में गया, as soon as he went in this team to play, immediately 3 players from this team they grabbed him। ये लोग जो है, इन्होंने उसको पकड़ लिया। He slowly moved back towards his court। The 3 anti-raiders also moved with him। When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the middle line, and with the anti-raiders still hanging on to his arm,
Oh, the whole of the 9th B team was declared out. अब देखो यहाँ पर हमने देखा मंगेश जो है, मंगेश ने 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया और उसको 3 पॉइंट्स मिल गए. नाउ नेक्स्ट हु वाज नेक्स्ट? विवेक. ये बाकी का बीच में थोड़ा गेम हुआ और उसके बाद में विवेक जो है, विवेक का टर्न जब आया 9A से, when he went in this team to play, at that time what happened? These 3 players were holding him. They were trying to pull him back, but like मंगेश के जैसा ही इसने भी खेला, इसने क्या कर लिया? He moved, carefully he moved to this boundary, and when these people they were holding him, at the same time he touched this boundary, and again 3 players from 9th B team were declared out. वापस एक बार 3 प्लेयर्स जो है 9th B के वो क्या हो गए? आउट. 9th had actually managed to get 3 more bonus point of Lona, and in this way 3 more bonus point किसको मिल गए? 9th 18 को, and these 3 more bonus points are called as Lona. क्या बोलते हैं इसको? Lona. It was an icing on the cake. और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो इसी तरह ये क्या है? आइसिंग ऑन द केक. ऐसा ये पूरा मैच चल रहा था. व्हाट एंड इट वायबल स्कोर. बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से 9A टीम खेल रही थी, एंड दे वर स्कोरिंग पॉइंट्स. Once again they managed to catch hold of the, it set the heads of 9th B reeling, और इस वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम लूज होते जा रहा था. 9th A had 1 minute. After the half-time break, the star players of 9th A were full of confidence. अब यहाँ पर बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद में वापस again the match started, and now this time 9th A team was full of confidence. क्यों ना हो, ये बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, पॉइंट स्कोर कर रहे थे, स्कोर करते ही जा रहे थे, and because of this these all players were so confident now in next half. Once again they managed to catch hold of the ace raider Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B who had never tasted defeat earlier. और इस तरह से जो है तो सेकंड हाफ में क्या हुआ? जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट हाफ में खेला ना, उसी तरह से उन्होंने सेकंड हाफ में भी परफॉर्मेंस दिया, एंड इन दिस गुड परफॉर्मेंस व्हाट दे डिड with their swiftness, with their strategies, with their determination, they won the match. सेकंड हाफ में भी यही लोग जो है तो इन्होंने मैच जीत ली. इस तरह से पूरी मैच जो है तो वो किसने जीत ली? 9A टीम. See now students, next paragraph. Kabaddi is an ancient sport. Now in this paragraph about kabaddi is given. कबड्डी के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई है कि किस तरह से ये स्पोर्ट क्या हुआ, इन्वेंट हुआ. Let us see. Kabaddi is an ancient sport. It originated in India and has now become popular in many countries. So the origin of kabaddi game is in our country. हमारी कंट्री से इसका ओरिजिन है, ओरिजिनेट हुआ है कबड्डी स्पोर्ट. Now become popular in many countries. लेकिन हमारी कंट्री के जैसे ही ये जो स्पोर्ट है कबड्डी, it has become popular in other countries as well. So that many international events are organized. तो इसी वजह से as this sport has become very popular, so many international events are organized. तो इंटरनेशनल लेवल पर इसे खेला जाता है. In these events, international rules are followed. No doubt, अगर इंटरनेशनल इवेंट है तो इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने ही हैं. बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गामिनी, अमर एक्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. लेकिन इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कबड्डी जो है तो कबड्डी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में खेला जाता है, और उसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, जैसे कि संजीवनी, गामिनी एंड अमर एक्सेट्रा. In kabaddi, 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by midline. यहाँ पर आप देख सकते हो कि both the team consist of 7 players,
और जो ये ग्राउंड होता है कबड्डी का, तो वो कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगुलर. इट इज रेक्टेंगुलर शेप डिवाइडेड विथ अ मिड लाइन. द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 halves विथ अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन. गेम जो होता है तो 2 पार्ट्स में खेला, 2 halves में खेला जाता है. 1 half, 2 half. तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हाफ होता है. इन बिटवीन देयर इज ए ब्रेक टाइम. आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट. फर्स्ट हाफ में इस तरह से है सपोज, तो सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा? ये टीम जो है, दिस टीम विल कम दिस साइड एंड दिस टीम विल गो दिस टाइम. सो दे हैव टू चेंज देयर ग्राउंड. हाँ, जो टीम है उनको क्या करना पड़ता है? उनका जो ग्राउंड है वो चेंज करना पड़ता है, उनकी जो साइड है वो चेंज करनी पड़ती है. To play the game, each team sends raiders across the midline to the other team. The raider tries to tag the opponents and run back to his side, all in one breath. To show that he hasn't inhaled again, he has to chant "Kabaddi, Kabaddi" all the time. If he has to inhale again, he is out. The opponents try to catch the raider and stop him going back to his half till he loses his breath and has to inhale again. If the raider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team scores a point. If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus point a lona. The team with the maximum point wins the match. So now, while explaining the lesson, I explain you all the things. तो वही चीजें यहाँ पर वापस रिपीट की गई है. तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्या होता है कबड्डी गेम में. हाँ, इन बोथ द टीम देयर आर 7 प्लेयर्स. और 2 halves में ये क्या होता है? गेम खेला जाता है. फर्स्ट हाफ में जो कोई भी साइड होगी टीम की, आफ्टर द फर्स्ट हाफ, इन सेकंड हाफ इट इज एक्सचेंज. ये टीम जो है तो ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है? चेंज कर ले, पोजीशन चेंज कर लेते हैं. ये यहाँ पर चली जाती है या यहाँ पर चली जाती है. एंड जब ये गेम चलता है तो क्या होता है? सी, द प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम, द रेडर फ्रॉम वन टीम हैज टू एंटर इनटू द अदर टीम, हाँ, बाय क्रॉसिंग दिस मिड लाइन. एंड ही हैज टू, उसको जो है तो उसको यहाँ पर टच करना है प्लेयर्स को. ही हैज टू टच द प्लेयर्स इन द opposite team, means opponents he has to touch, but continuously as soon as he enter this other team, continuously he has to chant कबड्डी कबड्डी. किसलिए कबड्डी कबड्डी चैंट करना पड़ता है? मतलब उसको पूरा काम जो है अपना, हाँ, दूसरी टीम में जाकर वो पूरा काम 1 breath में कंप्लीट करना है. और वो सिर्फ एक ही ब्रेक में कर रहा है कि नहीं, हाँ, इन ऑर्डर टू गेट दिस, हाँ, ये समझने के लिए उसको कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी चांट करना होता है. जैसे उसका कबड्डी कबड्डी का चांटिंग ब्रेक हो जाता है, हाँ, अगर कोई दूसरी टीम में हो गया है और चांट करते करते वो बीच में ही रुक गया है, मतलब वो हो जाएगा आउट. उसने क्या कर लिया? उसने ब्रीथ ले लिया, उसने वो काम एक ब्रीथ में कंप्लीट नहीं किया, ऐसा हो जाएगा. एंड when he is playing in this opposite team, जब वो अपोजिट टीम में आकर खेल रहा होता है तो जिसको जिसको वो टच करता है वो सब के सब लोग, और जब उनको टच करके अगर वो वापस अपनी ओन टीम में जाने में सक्सेसफुल हो जाता है, इस मिड लाइन को क्रॉस करके वापस अपने टीम में आ जाता है 1 breath में, तो जितने लोगों ने उसको टच किया है तो वो सब के सब लोग हो जाते हैं आउट. एंड जितने लोगों को उसने आउट किया है, द पॉइंट ऑल दोज पॉइंट्स गोज टू हिज ओन टीम. The game of kabaddi requires good health, muscular strength, strategic skills, a lot of practice, and above all, great determination. तो अगर इस गेम में आपको क्या होना है? अच्छे से माहिर होना है, स्किल हासिल करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर गुड हेल्थ, देन मस्कुलर स्ट्रेंथ. बराबर है? अगर आपको अपोजिट टीम में जाकर सबको पछाड़ कर आना है, it is very necessary that you should have good health, then muscular strength, then different strategies. आपके पास skills होने चाहिए, अलग अलग आपके पास पेंतरे होने चाहिए. strategies means पेंतरे, तो अलग अलग strategies होने चाहिए. इसके बाद में क्या है?
लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत सारी ज़रूरी है। सी ऑलरेडी इट इज सेड दैट, बोला जाता है दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो ही आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। ग्रेट डिटर्मिनेशन, ऑफ कोर्स आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, डिटर्मिनेशन है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। हमारी इंडिया जो है, इंडिया के बॉयज एंड गर्ल्स जो है, उन्होंने हमेशा ही कबड्डी में एक्सेल किया है, अच्छा खेले हैं। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर? तो बच्चों, अब आज जो आपने ये लेसन देखा, सब कुछ देखा, तो ये सब स्टडी करके आपको लग रहा होगा कि मैं भी क्या करूँ, कबड्डी में क्या करूँ, एक अपना नाम कमाऊँ, कबड्डी खेलूँ, ऐसा आपका मन जरूर कर रहा होगा। सो सी हियर, वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर? अगर आपको बड़ा होने पर एक अच्छा कबड्डी प्लेयर बनना है तो सी, हु नोज इफ यू मेक अ रिजॉल्व नाउ, अगर आपने आज से ही अपना मन बना लिया दैट आई हैव टू बी अ गुड एस कबड्डी प्लेयर, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल। हो सकता है अगर आज ही आपने डिसाइड कर लिया और आपने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, डिटर्मिनेशन रखा, स्ट्रैटेजी स्किल सीखे, हाँ सब कुछ किया, तो हो सकता है कि कल आप क्या करें, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम करें, डिस्ट्रिक्ट का नाम करें, और इवन द स्टेट एंड द कंट्री। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हो, आपके स्कूल का नाम रोशन कर सकते हो, फिर बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर सकते हो, स्टेट का नाम रोशन कर सकते हो, एंड फाइनली यू कैन ब्रिंग ग्लोरी फॉर योर कंट्री। ओके, तो अभी वापस आपको वंस अगेन दिस लेसन यू विल रीड केयरफुली, समझने की कोशिश करो वापस एक बार। वैसे तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, बट स्टिल वंस अगेन you will read the lesson very properly. So I hope all of you have enjoyed the lesson. Thank you.